department and the will be there separately, and the IRPF. So as we call it, we have our hierarchy starting from the railway board, then to the zone, then to the divisions, like this, like any other department. So just an overview how we started and what we are functioning now and what are the departments we are dealing. We are dealing with all the departments. We are providing the medical services at all levels, at primary, secondary and tertiary level. Mainly primary level that we have health units जिसको आप लोग स्टेट लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं. So community health center is equivalent to subdivision hospitals, which is under a division. And under a division, there are also health units in wayside stations. So these are compared to the primary health center. But the difference is that primary health center lies in the middle of a village, whereas it lies near the track, so near a station. And wherever there are health units, it's a major station. So what is the difference between a major and a minor station? It depends upon the people who are staying there and the number of employees are there. More than 600 employees in a particular station is called as, 150 plus is called as major station. So, and wherever there is a major station, there has to be a medical officer who is the only medical officer there. There might be some AEN, assistant engineer also, because they have to maintain not only the track but the colony also, and there has to be a colony. So, and one medical emergency van, which is called as ARME van, आप लोगों ने देखा होगा before joining railways, major stations के loop line में एक medical van का 2 कोच के साथ में auxiliary and medical van रहते हैं, ARME बोलते हैं, accident relief medical equipment van. So whenever there is a major stations, an ARME van will be there also. So, and so naturally to man that, to maintain that, to operate that, a medical officer will be there. So this is the primary level. The secondary level is mostly at that all divisional railway hospitals. So there are 67 divisions, all 67 divisions, all divisional railway hospitals. And in totality, if you see the tertiary care level, where in major headquarters, all headquarters, so there are 16 zones, 16 headquarters, 16 are zonal hospitals are there, which are providing tertiary care hospital up to super specialty. And in railway, the system is such that whenever, even at a secondary level, that is divisional level, or even at a tertiary level, where the super specialty facilities are not available, might be the infrastructure was there or is there, but we don't have a shortage of doctors. We don't have our in-house IRHS, Indian Railway Health Service, super specialists are there in adequate number. So what they do, they outsource that services, or they have a tie-up with a corporate hospital, multi-speciality, and how they manage. Now in city like Bombay is a very difficult to manage. I'm in a class now. Can you call me after 4:30, please? Are you a doctor? Okay. So in Mumbai, why there problem? Because in railway, the system is that in all CGHS hospitals, they have to have a tie-up with a fixed rate of each and every test, each and every procedures, each and every bed rates of the patients. And we agree with the CGHS rate. Now in Bombay city, because it's a very costly city, none of the hospitals in the nearby or either Central Railway Zonal Hospital or Western Railway Zonal Hospital, none of the hospitals have agreed yet till date. When I was in headquarters also, I also tried, but nothing happened. So they are not really at a very low rate of CGHS rate, and CGHS rate last 2014, the rates are really very sickly. So none of the corporate hospitals have agreed. So what they do, it's a different system. It is not the class. I can just explain you. So one-to-one, I can just share my knowledge about how they manage. But in other cities like Chennai, in Secunderabad, in Kolkata, where there are 2 railways also, there they do have tie-up with 3-4 hospitals, and when they cannot manage in-house certain specialty, they sell. Otherwise, most of the hospitals now have also cath lab for handling all cardiac cases also. Now this is about the zonal level, and thereafter we go up to the railway board, where a Director General Railway Health Services, our main head is there, who is a GM plus level, additional member level rank person,
and under his office there is one principal PED, one director, and one ED also. So as you have learned that the board formulates the policy and tries to get it implemented through zones, and zones percolates those policies to the department units at division level to get implemented. So policy making, cadre review managing, posting transfers of gazetted officer at senior level, above senior scale and above, are being managed by these board. So similarly, it happens in other departments also. So let me share few slides for this. I think you can see this. Yes, sir. Okay, fine. So while saying so, we have a cadre of 2,548. I have written here in clearly 2,548, but presently we are having less than 1,900. So new recruitments are going on. My job here as senior professor is different, as Professor HM is different. So because I am managing both the posts since March, so I am not the actual CD of IRHS. So Centralized Training Institute for Medical for stores now is NAIR. In NAIR, this IRHS Centralized Institute started from 2012. I was there at that time also as Professor HM, PHM. But I am not actually the CD now. But the last batch which came, I had to manage them because there was no other faculties from the medical department. So medical officers, IRHS officers, when they first join, they come report to NAIR, and joining formalities are completed, and then they undergo foundation, field training, and induction. But their total training period, like you people having 52 weeks, it is only 14 weeks, because mainly departmental professional training in medical department is not required because they are already professed in medical colleges. But for you, railway system is totally new. Preferably the IRS, IRSSE, the signal and telecom, whatever you have learned being a computer or electronic engineer is totally different in railways. So you have to have in your concern specific CTIs, you will be trained in railway handling of business. So having said so, let me rush through this a few slides. So earlier it was 7 zones, of course, in 1955. Then Railway Board had their DGRHs in 1955, and specialty hospitals in Bombay, Delhi, Calcutta, Madras, now Chennai. 69 में हुआ था. First bypass surgery, Perambur is a very famous for whosoever belongs to South India, they know also the name. So we have now a time-bound promotion for the doctors. Once they have inducted, they become senior skill after 4 years, JA grade after 9 years, selection grade after 13 years, and regular SA grade, which is under dynamic assured career progression, after 20 years. And from 20 years, from this pool of 20 years plus who have been selected in SA grade, they are now selected into a pool of 154 pinpointed SAG posts of CMS, SPHM, etc., which I am one of them. And from here, again, when we have our time, not before retirement, as per seniority and merit, we go for Chief Medical Director in the railways. So vacancy seniority is there. मैं क्लास में हूँ 4.5 बार. सो बट अभी बात चल रही है कि मेडिकल डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन करना या इंश्योरेंस को लाना. आई जस्ट शो यू फ्यू स्लाइड्स की इंश्योरेंस करने से रेलवे का नुकसान ही है, फायदा नहीं है. बट एनीवे, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब. सो टोटल रूट किलोमीटर्स मैं इसको अपने लिए रखा है, अपने प्रोफेशनल्स के लिए. तुम आप लोग यू हैव
already learned this. So board में अभी जो है उसमें से DG HR is looking after this post of HR and Director General Health Service Medical Department. So Health Directorate में DG RHS है, Director General Railway Health Services. So ये जो specifically मैंने जो short forms है, ये short forms को I can ask in the exam to write the full form also. So तुम्हारा जो reading material है उसमें भी दिया हुआ है, तो be careful whichever I stress upon in classes. So Director General Railway Health Services, then PED Principal ED Health, one ED Executive Director G General and one Executive Director Planning. But these two red marked posts are yet vacant there. So now Railway Board is run by only 4 persons, one DGRHS, one PED Health, one ED General and one Director IH. Now in zone, besides general manager and additional general manager, all PHODs are there. So PCMD is one of them heading the medical department, Principal Chief Medical Director. So PCMD is Principal Chief Medical Director. CMD is Chief Medical Director. So Principal Chief Medical Director is in HAG rank, and when there are CHOD, they are called PHOD, Principal HOD. If there are Chief HODs, they may not be in full-fledged HAG, but they are also CMD. In CHOD they are called Chief Medical Director. In his office also one post of pinpointed SAG is called as Chief Health Director, and then they are also assisted by additional CMD. They are also SA grade after 20 years, additional CMD, not assistant, as additional CMD. And J grade officers are called the Deputy CMD, Chief Medical Director. This is about the headquarter. Now in the zonal, there in headquarter, wherever there is headquarter, there is one zonal hospital, central hospital, which is headed by MD. Now what is MD? Medical Director. And MD is also assisted by these SAG officers, which is called as Chief Health Director, etc., Chief Staff Surgeon, additional CHD, Chief Health Director, etc. Now if you come down to the divisional level, CMS is in charge, Chief Medical Superintendent. He is the in charge there. And whenever there are posts is there, but the post is lying vacant of CMS, so second senior most additional CMS in charge is looking after the hospitals. So additional CMS, that is ACMS, it's a quite different between an ADMO and an ACMS. ADMO is the newly inducted additional, this is called Assistant Divisional Medical Officer, like you people are AST, AEN, we call. So similarly, we have in our Nair Health Unit, this is not under like your IIT colleges and all other colleges on campus. Medical officer is there. He is working as a campus medical officer, but actually this ADMO, Dr. Krishna, actually his first preface would be with him would be yours, not me. But people are calling me, oh, it's fine, okay, because you have CD as guided. I am just instructor here. I'm just a guide. I can guide people what to do, what not to do, including DG and faculty. But main preface would be Dr. Krishna, who is Assistant Divisional Medical Officer, and he is posted here, though it is in Nair, but this health unit is under Western Railway and Baroda Division, which is 2 kilometers apart from here. So a person starts from ADMO, then is promoted to Divisional Medical Officer, then J grade and selection grade as Senior DMO, Divisional Medical Officer, and then after 20 years when he becomes SAG regular, he becomes additional CMS. He may be posted in division, he may be posted somewhere else, he may be there in a health unit also. So it doesn't matter and the hierarchy, because we have a large cadre, so people cannot be accommodated everywhere. Hence, after ACMS, we have a pool of only 154, where specifically these people who have a senior and merit wise, they are selected and pulled into that pool of 154, and then they become CMS, then they become MD, then they become CHD, etc. at various places, and SPHM also here. So additional CMS is a SAG grade officer, and additional DMO, additional divisional medical officer, is the junior skill officer. And in railway, like in other departments, you have group B officers, but here also we have group B medical officers. नहीं बोलते, इसको बोलते paramedical officers, because medical officers are all class 1 officers and they are only minimum qualification MBBS. Whereas these group B officers in medical cadre, like assistant nursing officer, assistant pharmacy officer, assistant physiotherapy officer, assistant health officer, these people
are called as paramedical when they were not gazetted officers. So they start from nursing staff, they become chief nursing officer, then they become assistant nursing officer as gazetted. Similarly, one health inspector, then he becomes chief health inspector, then he becomes assistant health officer as gazetted after departmental exam. And similarly, one pharmacist, then chief pharmacist, senior pharmacist, chief pharmacist, then he become assistant pharmacy officer. So इसी तरह hierarchy में they go up as paramedical officers, group B in medical department. So medical department has one group A officers, all doctors are, and group B में paramedical officers are there like this I have mentioned. So as I said, 3-tier structure hai. Starting from the below, it is health unit, then sub-division hospital, which is under division also. Both are secondary level and zonal or central hospital. In all the 16 metro cities of zonal headquarters, there are these zonal central hospitals. And of course, if you call 17th hospital as Kolkata Metro, so it is a different metro. So metro also has a in charge there, where it is not under CMD, but it is directly under GM of metro now, and it is headed by CMO. So pinpointed post में से जितना ये जो 9 production units है, earlier they were under some other zones, so like DMW Patiala, RCF Kapurthala was, though they had GM, but our medical department was under the Northern Railways PCMD. But now since last 10 years it has been changed. Now they are under their GM and they are pinpointed post as CMO, Chief Medical Officer, which is equivalent to CMS or CHD in headquarters. So just an overview कि कितना hospitals है. We have sub-division hospital, division hospital, central hospital मिला के total on Indian Railways we have 125 railway hospitals. 125 railway hospitals and around 586 railway health units or polyclinic also. Polyclinics are there where? In Nagpur. Polyclinics are there under Central Railway as well as under ACCR, whose headquarters is Bilaspur. So polyclinics are there also. So these all includes 586. So a total structure of 125 railway hospitals and 586 health units मिला के पूरा medical department है. We have certain lockup dispensaries also. And फिलहाल ये 2-3 साल पहले का आंकड़ा है. प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ जो रिकॉग्नाइज किया है, नाउ एज पर 2016 सर्कुलर फ्रॉम रेलवे बोर्ड दैट व्हाट हाउएवर पॉसिबल सीजीएचएस रेट पे जितना हो सके एम्पैनलमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स करा लो बाहर, लेकिन पीपल आउटसाइड जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो लोग मानेगा तब कि सीजीएचएस रेट पे, अगर नहीं है तो लोकल सिटी रेट पे दे या सीजीएचएस रेट ना भी हो तो देन दिट इज अ डिफरेंट प्रोसीजर वी आर. बट अराउंड 700 हॉस्पिटल्स आर टाइड अप and indoor beds total all over Indian Railway में around 14,000 है. So this is how the structure is working. So our IHS cadre जो है 2,548 है, out of which almost 1,900 are there. Yes, newly inducted in 2020 हम लोगों ने करवाया है. Already 49 have joined and बाकी 62 अभी आज से शुरू हुआ, ऑनलाइन उसका हो गया. They are on field training now. In December, all of them will come for foundation year after you people leave after 11th of December. 21st December से वो लोग आ रहे हैं. तो total number of vacancy around अभी भी 700 है. And बाकी जो है जो academics part है in the railways, we have DNB courses. So 50% of the DNB seats are booked by the National Board of Examiners. Whenever there is NEET PG exam, DNB seats जब भी है 50% have been given to railways for the railway doctors who are appear in the NEET PG and qualify. तो एक फायदा हुआ, जो डॉक्टर्स जो है पहले टाइम वेस्ट करके आता था, पीजी करके आते थे, देन स्टडी लीव मिलता था नहीं मिलता था, तो दे आर नाउ एलिजिबल. तो स्पेशलिस्ट कैडर हमारा बढ़ने वाला है जो कि बहुत जरूरी है. देन कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है जहाँ पे वैकेंसीज है वहाँ पे अराउंड 400 थ्रू आउट इंडिया. सो दिस मच अभी बता देता हूँ. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर देखा जाए अभी प्रेजेंटली 12,70,000 है. एंड RELHS कार्ड होल्डर. नाउ व्हाट इज RELHS कार्ड होल्डर? दीज आर रिटायर्ड एम्प्लॉइज. व्हाई RELHS? RELHS पूरा फॉर्म क्या है? रिटायर्ड एम्प्लॉइज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम, जो कि तुम भी बनोगे 60 साल के बाद, हम भी बनने वाले हैं अभी. तो रिटायर्ड एम्प्लॉइज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम में जब रिटायर्ड आदमी नाम दाखिल करते हैं along with
a card जहाँ पे उसका फोटो होता है along with spouse and any dependents at that point of time, they are eligible for equal treatment of a railway officer or an employee जब वो in service रहते हैं, fully free. So railway treatment is fully free to these number of beneficiaries. Now beneficiaries calculate हम लोग कैसे करते हैं? Employee into roughly number 4 into 4 and RELHS card holder into 2. But at places they calculate also employees into 5 and RLHS card holder into 3. So around देखा जाए it is the आंकड़ा थोड़ा कम है but is around 65,000 because number of people of RELHS retired people are increasing, swelling up day by day, and around 65 to 66 lakhs total railway beneficiaries है जो कि country like Qatar, Norway, Sweden, Singapore का total population से ज्यादा है जो कि सिर्फ रेलवे में, and these beneficiaries are spread across the length and breadth of the country. So just overview की function कैसे करता है, जितना हॉस्पिटल्स है मैंने बताया 125, उसमें अगर टोटल ओपीडी 2018-19 में केसेस अटेंडेड वाज, यू कैन सी हियर around 2 crore, indoor admission around 5 lakhs, total number of surgeries performed around 160 lakhs, and बाकी जो आंकड़ा मैंने सिक पैसेंजर्स, हाँ रेलवे अटेंड डॉक्टर्स जो स्टेशन पे पोस्टेड है, जो सिक पैसेंजर्स को कॉल आता है तो अराउंड 60,000 इन लास्ट 18-19 में अटेंड किया गया. रेलवे एक्सीडेंट अभी तो बिल्कुल ही खत्म हो गया और रेलवे एक्सीडेंट कॉल्स भी अटेंड होता था अराउंड 1302. सो these are the functions which medical department is going through and doing it also. So इसका आउटकम बहुत ही अच्छा है. सो एकेडमिक प्रोग्राम है इन जोनल हॉस्पिटल मोस्टली और टोटली डीएनबी प्रोग्राम्स होता है, वर्कशॉप, सीएमई कॉन्फ्रेंस, साइंटिफिक पेपर्स भी होता है, एंड दे गेट आई मीन बेनिफिट्स ऑफ 2 कॉन्फ्रेंसेस अटेंडिंग, लाइफ मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन, स्टडी लीव एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मैंने बता दिया कि किसका क्या काम है. सो एक्सीडेंट क्या क्या काम मेडिकल करते हैं डिपार्टमेंट, industrial medicine mainly because this is the industry in the largest in the world. So industrial medicine medical department को attend करना है, accidents and other incidents, traveling of the sick passengers जो travel करते हैं उसको attend करते हैं, pre-employment medical examination करते हैं because you have also undergone medical board. Similarly non-gazetted staff को भी हम लोग examine करते हैं, and in-house employees not gazetted officers को भी periodic medical examination करते हैं. So what is PME? Periodical medical examination of serving employees. और मेडिकल बोर्ड्स भी करते हैं. ये सब का हमने आपको कवर कराना है ये क्लासेस के दौरान. अदर एग्जामिनेशन लाइक मेडिकल बोर्ड होता है, सिक फिट सर्टिफिकेट इश्यू करता है, वो भी आपको बताएंगे. इसके अलावा वाटर सप्लाई, सैंपलिंग ऑफ द स्टेशंस, क्लोरीनेशन है कि नहीं, बैक्टीरियल रेसिडुअल क्लोरीन, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट एक्सेट्रा है कि नहीं, केमिकल टेस्ट इज डन बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. बाकी फूड सैंपल्स जो कलेक्ट करते हैं अंडर एफएसएसआई एक्ट सिंस 2012 रेलवे में इंप्लीमेंट हुआ. दिस एक्ट हैज कम इनटू फोर in 2011. 2054 में 1954 में फूड प्रिवेंशन एंड अडल्ट्रेशन एक्ट था, पीएफए एक्ट, बट इट हैज बीन कन्वर्टेड टू एफएसएसआई एक्ट. सो ये हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट के जो हेल्थ इंस्पेक्टर्स है दे आर रिस्पांसिबल फॉर सो सर्टिफाइंग. देन वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, जितना फैक्ट्री एक्ट के अंडर फैक्ट्री लोग है उसका ड्यूटीज में वो कोई इंजरी होगा उसको भी हमें देखने पड़ता है. So and nowadays all of you have to whenever you are posted permanently वहां पे जाके पर्सनल डिपार्टमेंट के थ्रू आपका उम्मीद कार्ड या यूनिक मेडिकल आईडी कार्ड हैज टू बी मेड. बिकॉज एक यूनिक कार्ड ये है कि आप वो कार्ड लेके, आपका स्पाउस है, आपका बच्चे होगा, सबके नाम पे अलग अलग बनेगा, सबके पास अलग अलग कार्ड रहेगा. सपोज यू आर ऑनलाइन एंड उम्मीद कार्ड में आपका किसी और का जरूरत पड़ गया घर पे, तो इफ ही और शी हैज दैट कार्ड, they can with that card approach any railway hospital in any part of the country without any questioning and can avail free treatment as you are getting in your place where you are posted. So at all levels we are providing preventive, promotive, curative and rehabilitative service. So our totally in-house, primary level 100%, secondary level 95%, 5% we refer to our tie-up hospitals, tertiary 90% in-house, 10% हम लोग बाहर करते हैं. बाकी प्रिवेंटिव हेल्थ में कॉलोनी सैनिटाइजेशन, वाटर सैनिटाइजेशन, फूड एक्सेट्रा हमने बता दिया. सो कंस्ट्रेंट, यस इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिसी, रूल्स, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कंस्ट्रेंट है. मैन पावर लिमिटेशन, दो वी हैव बीन गिवन लास्ट ईयर 4,000 crore
but this is not enough. But yes, railway is also running short of funds also, so we cannot demand more. So now I'll go to the main part. आज का जो है मैंने ओवरव्यू दे दिया, बिकॉज इफ दिस हैज नॉट बीन शेयर्ड तो मैंने कुछ बताया नहीं पाया फिर मेडिकल डिपार्टमेंट के बारे में. तो आज का जो आपका टॉपिक था मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, दैट आई एम गोइंग टू शेयर नाउ. Mayank, you can see this? Yes, sir. Okay, fine. So medical attendance and treatment, इसमें कहने का क्या है कि किस किस को हमने अटेंड करते हैं और किसको ट्रीटमेंट बोलते हैं. बस जस्ट एन ओवरव्यू, जस्ट आई एम रनिंग थ्रू दिस. तुम्हारा रीडिंग मटेरियल में भी है. ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर, एएमओ जो बोलते हैं, ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर, नॉट असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर. ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर मीन्स रेलवे मेडिकल ऑफिसर विद इन हुज jurisdiction the railway employees headquarter or one who is specifically nominated for the purpose. इसके मतलब हम किसी एक डॉक्टर को मैंने डिवीजन में पोस्ट कर दिया, तो डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल में वो पोस्टेड है, लेकिन उसका जुरिस्डिक्शन क्या है? एंटायर डिवीजन. सिमिलरली यू आर पोस्टेड इन अ पर्टिकुलर डिवीजन, आपका जुरिस्डिक्शन क्या है? आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, इफ यू आर एन इंजीनियर, आपका जुरिस्डिक्शन पूरा एंटायर डिवीजन है. सो दिस इज योर जुरिस्डिक्शन. सिमिलरली मेडिकल ऑफिसर को भी रेलवे में वो अपना हेडक्वार्टर में जहां है वो तो है ही, प्लस उसके अंडर जितना है सारे एम्प्लॉई उसके अंडर वो जुरिस्डिक्शन में पड़ता है. हालांकि आपका जो असिस्टेंट ऑफिसर है, जो प्रोमोटेड ऑफिसर्स होता है, वो दूर में रहते हैं, बट मेनली डायरेक्टली रिक्रूटेड इंजीनियर्स नॉर्मली क्या होता है, आप डिवीजन में पोस्टेड हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर हो, चाहे ब्रांच ऑफिसर्स हो, चाहे इंजीनियर हो, लेकिन आप दूर का काम भी हो है. Department providing medical service, so we have lot of helps either on the east part or the west part and the north or the south. जैसे distribution का division होगा, उनके साइड स्टेशन मतलब जो मेजर स्टेशन है जहाँ पे 150 से ज्यादा क्वार्टर होगा, एम्प्लॉई है, एंड एक हेल्थ यूनिट है, एंड एक उसके हेल्थ यूनिट में डॉक्टर होगा और एक हेल्थ इंस्पेक्टर भी है. इसको बोलता है मेजर स्टेशन. तो मेजर स्टेशन में लाइक इन बड़ौदा डिवीजन मेजर स्टेशन है, बॉम्बे डिवीजन में मेजर स्टेशन है. बॉम्बे डिवीजन मेन हॉस्पिटल तो है, उसमें डिवीजन का कोई हॉस्पिटल नहीं है, बिकॉज जोनल हॉस्पिटल वेरी टू दी बॉम्बे सेंट्रल. सो इसका डिवीजन हॉस्पिटल इटसेल्फ नहीं, बट उसका हेल्थ है, तो उसका जुरिस्डिक्शन हेल्थ आता है बॉम्बे डिवीजन का अप टू सूरत, नांदेड़ जगहों के पहले. तो नांदेड़ में भी एक हेल्थ यूनिट है, सूरत में भी है, सिमिलरली एक विदार में है, फिर इधर पालगढ़ में है, बोरीवली में है, बांद्रा में है, परेल में है, बॉम्बे सेंट्रल में है, चर्च में है. नॉट ओनली इवन जहाँ पे ऑफिसर रहते हैं, and I was there in headquarters, I used to stay there also in Kolaba, जहाँ पे बदवा पार्क है वहाँ पे भी है. इसीलिए so that easily all of the officers of the who were staying in west side they can be attended to. So उसका jurisdiction health वही होगा जो कि अलग से बोलता है, उसका jurisdiction क्या है आगे बताता हूँ. बट हेडक्वार्टर डिवीजन को उसका पूरा डिवीजन उसका हेडक्वार्टर है. सो रेलवे ऑफिस मेडिकल ऑफिसर का, और यह आपको जब भी होगा posted like that. So finally jurisdiction will be taken to cover railway employees residing within but railway hospital में अगर posted है तो 2 किलोमीटर radius, but no many places जिसका 5-6 किलोमीटर दूर में भी एक रेलवे कॉलोनी है, जहाँ पे मान लो सीएनजी वर्कशॉप है, कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप है, सीएनडब्ल्यू. तो वहां का एम्प्लॉय कहाँ जाएगा? उसका एम्प्लॉय वहां पे था, अगर मान लो हेल्थ यूनिट है नहीं तो डिविजनल हॉस्पिटल ही है, बट 5 किलोमीटर अपार्ट, उस जुरिस्डिक्शन भी हमारा होता है. बट बुकिश जो टर्म है, इट इज 2.5 किलोमीटर रेडियस विद इन द हॉस्पिटल और 1 किलोमीटर रेडियस विद इन द स्टेशन. अभी अटेंड हम लोग किस किस को करते हैं? वी अटेंड द रेलवे एम्प्लॉय हिमसेल्फ, हिज फैमिली एंड डिपेंडेंट रिलेटिव एज पर पास रूल. पास रूल के बाहर मतलब पास में जो जो नाम इंक्लूड है उसी एम्प्लॉय का बोनाफाइड
उन्हीं सबको करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. They need not have to pay. Neither we have to pay, neither you have to pay. So dependent relative as per past rule. The question आता है कि हमारा father alive है, mother alive है, where father and mother अगर alive है, they are not your dependent. So parents are not dependent. और अगर father जिंदा है तो, because father has some income, which you cannot say कि मैं हाँ widow mother है, provided मैं अभी बताऊंगा उनका income DA मिला के less than 9,000 है, and she is totally dependent upon you, you can declare yourself being a widow dependent mother, then only हो सकता. Otherwise normally if she gets pension of your father, anybody's deceased father, then she is not a dependent. So we attend those people, number one. Number two, we attend in our consultation room in hospitals, and even in at places at the residences जब call आता है, in junior जब थे हम लोग कभी कभी residence में जाते थे, that also a consultation. All investigation in railway hospital, or if I refer it to government hospital, or in a private referred hospital, all are attending treatment. So consultation in house हो बाहर हो, भाई ऑनररी बुला के हम स्पेशलिस्ट बुला के बाहर से पैनल डॉक्टर से बुला के दिखाते, that is also consultation. Refer to a specialist center, that is also. Now treatment means क्या है? Medical and surgical facility जो available है while treating a patient, while investigation, applying something, appliances, surgery, providing medicine by the authorized medical officer, those includes treatment. So everything what I have said, including vaccination, medication, whatever. So whenever you are provided accommodation, ना कोई अभी आपको होता है रेलवे हॉस्पिटल में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रीटमेंट एडमिट होके आप you can take your treatment. So one of your friend is also admitted there due to fever from day before yesterday night. So medical officer may certify in writing the essential for the recovery of. So this is a term I am not using. So railway hospital में जो आपका hospital suited to the status of the railway employee. अब treatment is वहाँ पे जो है यूनिक है कि हम सभी को एक ही जैसे ट्रीटमेंट करते हैं. और ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, अ गैंगमैन, अ ट्रैकमैन और अ खलासी सफर्ड एन हार्ट अटैक, उसके लिए जैसे हम ट्रीटमेंट देंगे, एक जीएम आएगा उसके लिए हम सेम ट्रीटमेंट देंगे. ट्रीटमेंट में कोई नहीं, देयर इज इक्विटी इन ट्रीटमेंट. बट यस, द अकोमोडेशन इट डिपेंड्स अपॉन योर रैंक, योर स्टेटस. ना ऑफिसर्स के लिए अलग होता है, ओके, हायर ऑफिशियल्स के लिए सम स्पेशल होता है. बाकी सुपरवाइजर के लिए भी हम लोगों का अलग से शेयर्ड केबिन्स है, एयर कंडीशन केबिन्स है. And where climates are very awkward, like in Rajasthan, in Gujarat, in Baroda also, in general ward also female type and male type अलग-अलग है, वहाँ पे भी air conditioning करा दिया. And that depends upon, this is not a policy, but this is a local policy made by depending upon the demand of the unions, of the staff, of the officers and DRMOs. कर सकते. So accommodation depending upon your status, but treatment equity है. डेंटल ट्रीटमेंट की जहां तक बात है, एक जना अभी पूछा था कि मेरा कैपिंग उड़ गया, कैपिंग कराना है. तो डेंटल ट्रीटमेंट जो है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेंटल पार्ट ट्रीटमेंट का है, बट वी डोंट हैव एडिक्वेट डेंटल सर्जन. सो दीज डायरेक्टली यूपीएससी रिक्रूटेड डेंटल सर्जन इज आल्सो क्लास 1 ऑफिसर एंड दे आर प्रमोटेड इक्विवेलेंटली लाइक अस इन डिफरेंट स्टेजेस. रेगुलर प्रमोशन होता है एंड दे व्हाइल इंडक्टेड, हमारा मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं एडीएमओ, दे आर कॉल्ड एज एडीडीएस, असिस्टेंट डिविजनल डेंटल सर्जन. तो इनका जो हमारा फैसिलिटीज है जितना है उतना ही आपको मिलेगा, बाकी ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा. अगर उन्होंने खुद दूसरे जगह पे हायर ट्रीटमेंट के लिए डेंटल का रेफर करता है, बिकॉज दिस इज नॉट एन इमरजेंसी, सो वी कैन रेफर टू सम अदर रेलवे हॉस्पिटल और जोनल हॉस्पिटल जो व्हिच इज फुल्ली इक्विप्ड. ऑल जोनल हॉस्पिटल्स हैव फुल्ली इक्विप्ड डेंटल सेटअप जहां पे सब कुछ होता है. बट यस, अगर कुछ रेफरल करना, कुछ भी करना, सीजीएचएस रेट पे आपको रिइंबर्समेंट मिल सकती है, नॉट बियॉन्ड दैट. सो दांत का ख्याल आपको अभी से रखने पड़ेगा. और बाकी जो है, कोई अगर फिजियोथेरेपी का करना चाहिए, मसाज ट्रीटमेंट, एक्सेप्ट दैट इन केस ऑफ जैसे जरूरत है, स्ट्रोक हो गया किसी का, उसके बाद फिजियोथेरेपी चाहिए हो, बट स्पेशल ट्रीटमेंट, मसाज ट्रीटमेंट ये सब नहीं होता है. आई ग्लासेस के लिए टेस्टिंग एवरीथिंग इज देयर, बट ग्लासेस आपको खुद को लेने पड़ेगा. रेलवे डज नॉट प्रोवाइड यू ग्लासेस. बाकी ट्रीटमेंट एंटायरली आपको सब कुछ मिल जाएगा. Now for the rules contained in this means person railway employee किसको बोलता है, who are members of a service or who hold post under the administrative control of Ministry of Railways. तो family member जो मैंने बताया for the purpose of rules which includes a consortium. कैसे? Wife of a railway employee, whether she is earning or not,
husband of a railway employee, whether he is earning or not, sons under 21 years of age, provided they are wholly dependent on the railway employee, or unmarried sons over 20 years of age. आजकल ये लिमिट हटा दिया, अगर unmarried sons unemployed है, you have to declare yourself. An officer has to, or an employee has to declare himself without any upper limit, even if not a student or invalid, provided he is wholly dependent on and resides with the railway employee in the same railway accommodation. 2009 से ये लिमिट हटा दिया. Daughters के लिए, unmarried daughters, of course, irrespective of whether they are earning or not, irrespective of their age. Married daughters, if under, पहले जमाने में 16 साल में शादी कराते थे, तो married daughters under 18 years of age or widowed daughters came back to the father, parents' house, irrespective of their age, provided they are wholly dependent on the railway employee. Even stepsons, unmarried stepdaughters, married stepdaughters, and one adopted child, subject to the age limit prescribed in previously B or C में, जैसे जैसे है वैसी. So scope बहुत है, provided they are wholly dependent. Now in case अगर मान लो husband wife दोनों railway employee है, husband wife may be allowed to avail himself herself treatment, medical attendance, everything. Either अच्छा किस लेवल पे, मान लो एक husband officer है यहाँ पे और wife is not an officer, okay, she is a non-gazetted railway employee, तो हस्बैंड का जो स्टेटस है उसी हिसाब से स्पाउस को मिलेगा, एंड वाइस वर्सा. दिस इज व्हाट आई मीन. डिपेंडेंट रिलेटिव्स, फॉर दीज रूल्स विल इंक्लूड ऑल सच पर्सन्स व्हिच आर एलिजिबल फॉर पासेस अंडर द पास रूल्स. सो पर्सनल डिपार्टमेंट से आपका जैसे आइडेंटिटी कार्ड के साथ में डिपेंडेंट्स का भी आपको डिक्लेरेशन ले लेगा एक फॉर्म भर के, तो उसमें आपका पूरा, उसके साथ साथ आप एक मेडिकल कार्ड और उम्मीद कार्ड भी बनाना, हर एक इंडिविजुअल डिपेंडेंट्स का अलग अलग. एम्प्लॉइज का नीचे ब्लू पट्टी होता है, नंबर होता है सीरियल, और सेम नंबर से ABCD करके येलो पट्टी में डिपेंडेंट्स हो जाता है. सो रेलवे एम्प्लॉई और रिटायर्ड एम्प्लॉई में उम्मीद कार्ड में क्या फर्क है? बाय सीइंग इटसेल्फ, वन इज ग्रीन, वन इज ब्लू. सो जब हम रिटायर कर जाएंगे, RELHS रिटायर्ड एम्प्लॉइज लिबरल स्कीम में चले जाएंगे आफ्टर 60 and we after 62, so we will have that उम्मीद कार्ड जिसका नीचे ब्लू ग्रीन पट्टी रहेगा, उसके ऊपर मेरा सीरियल नंबर प्रिंटेड रहेगा, और उस डिपेंडेंट का भी वही सेम रहेगा, ग्रीन एंड येलो डिपेंडेंट. बट एम्प्लॉइज का इन हाउस जब इन सर्विस है, ब्लू पट्टी एंड डिपेंडेंस येलो. सो ब्लू एंड ग्रीन इज द डिफरेंस. डिपेंडेंट रिलेटिव्स बोले तो मदर और स्टेप मदर इफ शी इज अ विडो, unmarried or widowed sisters or step sisters, his father is not alive, then she is dependent upon you as an employee, then वो हो सकता है. If father is not alive, brothers, step brothers under 21 years of age आपके ऊपर dependent है, and you have declared that they are also dependent, provided the above are wholly dependent and reside with you, with the railway employees. The word wholly dependent means a person who does not have any independent income. Why he is only dependent? Because he does not have any independent income. More than 15% of the emoluments of the railway employee or 1500 plus DA जो भी उसका करो, उसका मतलब वो, this is a intricacies है, and personal department does handle this. We are just to verify whether he has a card or not. Now, to what extent this can be applied? Medical attendance and treatment facilities will be available free of charge to all the railway employees and their family members and dependent relatives as per the past rule, irrespective whether the employee are in group A, B, C or D, and whether they are permanent or temporary. Temporary status जैसे मिल जाता है, खलासी को temporary status पहले after 12 weeks मिल जाता है, फिर then officer has to certify ये temporary हो गया. उसका परमानेंट होने में कितना टाइम लगेगा? परमानेंट होने में उसका 3 इयर्स और करनी पड़ेगी नौकरी, फिर 3 इयर्स के बाद परमानेंट होगा. बट जैसे टेम्पोररी स्टेटस हो गया उसका 120 डेज बाद, ही बिकम्स एलिजिबल फॉर फुल ट्रीटमेंट ऑफ हिज फैमिलीज एंड डिपेंडेंट्स. सो रेलवे जो है सिस्टम में, इट इज नॉट अवेलेबल दैट टू दैट एक्सटेंट इन CGHS आल्सो, व्हिच इज हियर ओनली. सो रेलवे एम्प्लॉइज ऑन लीव और लीव प्रियोरिटी अब कैसे कैसे समय में मिलता है? मान लो हम रिटायरमेंट करने जा रहे हैं, उससे पहले प्रिपरेटरी हमें मकान बनाना है, सेटिंग करना है, किधर जाना है, एक शहर में नौकरी कर रहा हूँ, दूसरे शहर में सेटलमेंट कर रहा हूँ, छुट्टी तो लेना पड़ेगा. ड्यूरिंग दैट लीव आई विल नॉट गेट मेडिकल ट्रीटमेंट, डेफिनेटली आई विल गेट फुल ट्रीटमेंट. सो दिस लाइन मीन्स दिस, अ रेलवे एम्प्लॉय ऑन लीव, जब हम छुट्टी में जाते हैं, प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट और से मेडिकल अटेंडेंस, एलिजिबल फॉर मेडिकल अटेंडेंस फुल्ली,
और कहाँ है री एम्प्लॉयड रेलवे एम्प्लॉयज, री एम्प्लॉयमेंट अभी बंद कर दिया, बट कोविड में ओनली मेडिकल स्टाफ को 31 दिसंबर तक अलाउ किया। जो रिटायर हो गया उसको दोबारा अगर काम पे आता है उसको लगाओ, बट बाकी सब अभी बंद कर दिया। और जो लार्गीज सिस्टम पहले था कि रेलवे एम्प्लॉयज हो जाए उसको पहले से मेडिकली इनवैलिडेट कर दिया, उसका बच्चे को मिल गया वार्ड को, वो अभी बंद कर दिया। सो री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज अगर होगा, सेम ट्रीटमेंट अवेलेबल फिर से शुरू होगा। रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज तो है ही, ऑन द री एम्प्लॉयमेंट रेलवेज are entitled to medical attendance. Next, all officers and staff of CRS. The Commissioner Railway Safety, जो कि रेलवे CRS का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, तो दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, डेपुटेशन में होता है, रेलवे ऑफिसर ही आता है मोस्टली अप्लाई करके। सो इसको बोलता है कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, ए वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। तो ऑफिसर्स एंड स्टाफ अंडर हिम, हिज ऑफिस, दे आर आल्सो एंटाइटल्ड फॉर। नाउ ऑडिट स्टाफ, नाउ तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग सर्विस के अलावा अभी जब सिविल सर्विस में आएगा उसमें पर्सनल डिपार्टमेंट, अकाउंट, फाइनेंस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस एंड इंडियन रेलवे ट्रैफिक। लेकिन एक ऑडिट स्टाफ होता है जो कि ऑडिट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस जो हर स्टेट में है, उनमें से कुछ स्टाफ जो है रेलवे में भी है। सो इन एवरी डिवीजन, एवरी हेडक्वार्टर में ये लोग होता है। द प्रिंसिपल चीफ ऑडिटर जो होता है एक जना होता है, डायरेक्टली रेलवे में वो हेडक्वार्टर में होता है, बट नॉट ऑल जोन्स हैव दैट प्रिंसिपल चीफ ऑडिटर। बट नॉर्मली ऑडिट स्टाफ जो है डेपुटेशन में आता है, एंड एवरी डिवीजन में, एवरी जोनल हेडक्वार्टर में भी होता है। नो दी स्टाफ दे आर अंडर CGHS रूल्स और गवर्नमेंट सिविल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस रूल्स में आता है। दे हैव टू ऑप्ट, अगर रेलवे में हो गया देन एंड देयर दे हैव टू ऑप्ट कि मेडिकल ट्रीटमेंट मुझे CGHS से लेना है या रेलवे से लेना है। वंस ऑप्टेड देन दे कैन नॉट चेंज थ्रू आउट द टेन्योर। नॉर्मली क्या होता है, जोनल या हेडक्वार्टर में दे गेट रेलवे अकोमोडेशन एज गुड एज अदर ऑफिसर्स, सो दे स्टे विद इन आवर कॉलोनी, दे स्टे विद इन आवर सोसाइटी, सो दे आर अ पार्ट ऑफ आवर fraternity also. So they normally they in 99% of cases opt for railway medical health services until and unless they have a good CGHS scheme at that particular city where he is staying also and is comfortable with. So 1%, 2% case में होता है. So audit staff जो है they have to choose. Now staff on deputation, railway employees on deputation to suppose rights में चले गए. You know what is rights and IRCON, Indian Railway Construction and Indian Railway Technical and Economic Wings है जो दिल्ली में है, जो इसका PSUs है रेलवे की, इसके लिए स्टाफ ऑन डेपुटेशन वहां पे जाता है, लेकिन वहां पे फुल मेडिकल फैसिलिटी इस तरह नहीं मिलते हैं. There, however, they would pay annual contribution on the basis of per capita expenditure of a railway employee on all Indian Railway basis multiplied by the number of railway employees on deputation with them. Suppose rights have an employee strength of 2000, उनमें से डेपुटेशन में मान लो 50 लोग गए हैं रेलवे में से, ऑफिसर्स, नॉर्मली ऑफिसर्स ही जाता है, राइट्स में गया, कोई हाई अपर लेवल सीनियर सुपरवाइजर भी जाता है, मोस्टली ऑफिसर्स जाता है. अब तुम्हारा मान लो बीइंग एन इंजीनियर रूम राइट्स में गया, सिविल इंजीनियर इनकॉर में गया, डेपुटेशन 5 साल या 3 साल या 4 साल जो भी बिता रहे हैं उसमें बिता रहे हो, तब जाके तुम्हारा ये रेलवे जो फैसिलिटी अभी मिलेगा, रेलवे में रह के वो नहीं मिलेगा, आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा, एक कंट्रीब्यूशन आपसे दिलवाया जाएगा. कैसे कैलकुलेट करेगा, 2000 में से 50 अगर राइट्स में गया है तो पर कैपिटा हमारा कितना एक्सपेंडिचर होता है, इट इज अराउंड 7000, अराउंड 7000 में बढ़ के अभी 11000 हो गया पर ईयर पर एम्प्लॉय इन रेलवे. इट्स इकोनॉमिकल बट इट्स टोटली ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव. और मान लो 10,000 होता है, 10,000 इंटू 50 उतने, और टोटल स्टाफ में से बांटेगा. सो लगभग अराउंड 10,000 तुम परमिसेबल है पर मंथ, मतलब उसको खर्च करने का. तो बाहर आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको मन मर्जी जगह पे, और आप रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हो व्हेनेवर यू गो ऑन डेपुटेशन. सो इट्स नॉट दैट बैड आल्सो, बट यस रेलवे जैसे इन हाउस फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी. वासी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन कुछ है, उसको भी फ्री मेडिकल अटेंडेंस ट्रीटमेंट मिलता है इन रेलवे हॉस्पिटल्स अवेलेबल टू देम, लाइक ए कंज्यूमर कोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है. आप धीरे धीरे इसको जानते जाओगे जब डिवीजन में पोस्टिंग हो तब. नाउ स्टाफ बेनिफिट फंड है, इट इज अंडर डिप्टी CPO, पर्सनल डिपार्टमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर है, और डिविजन्स में भी इसका ब्रांचेस है. स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी का जो मेंबर्स है वो भी क्वासी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है.
रेलवे इंस्टीट्यूट्स है जो कि नॉन गेजेटेड स्टाफ की इंस्टीट्यूट होता है, वहां पे शादी कराते हैं, वहां पे स्पोर्ट्स ग्राउंड है, तो रेलवे इंस्टीट्यूट हमारे जैसे ऑफिसर्स क्लब है, उसी तरह रेलवे इंस्टीट्यूट्स है फॉर नॉन गेजेटेड स्टाफ. So these are all. Then Railway Officers Club है, then Station Committee है, Statutory Canteen of Indian Railways है, whole time not part time employees of जो centralized organized union है, AIARF, NFIR, zonally recognized, उनका जितना स्टाफ है, सबको फ्री आउटडोर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज ओनली विल बी अवेलेबल टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द क्वासी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन खुद के लिए दोनों ही मिलेगा, लेकिन उसका फैमिली के लिए ओनली फ्री आउटडोर ट्रीटमेंट, यही क्वासी के लिए. नाउ टॉकिंग अबाउट रिटायर्ड, मैं बोला था, मैं रिपीट इट, रिटायर्ड एम्प्लॉइज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम RELHS 1997 में शुरू हुआ था. सो इट इज ऑल रिटायर्ड एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी, इवन CRB जो रिटायर हो गया अभी निकल जाएंगे, वो भी RELHS में दाखिलत किया नाम, उसका कार्ड बनेगा आखिरी दिन में. लास्ट मंथ सैलरी विल बी डिडक्ट, बेसिक विल बी डिडक्टेड फॉर द कंट्रीब्यूशन वन टाइम लाइफ टाइम, एंड उसके बाद जो फुल मेडिकल ट्रीटमेंट आपको परमिटेड है उनको भी वही परमिटेड है एज पर द सर्विंग एम्प्लॉइज, ऑल एवरीथिंग. इवन इफ ही इज रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड टू सम प्राइवेट हॉस्पिटल, दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इंटर एलिया एम्बुलेंस सर्विसेज, मेडिकल पास, होम विजिट्स, मेडिकल अटेंडेंस, फर्स्ट टू प्रेगनेंसीज, मैरिड डॉटर का फर्स्ट टू प्रेगनेंसीज एट ए कंसेशनल रेट, दे आर परमिटेड टू गेट देम डिलीवर्ड इन अ रेलवे हॉस्पिटल ऑल्सो. अदरवाइज रेलवे हॉस्पिटल में अगर बाहर से कोई नॉन डिपेंडेंट आता है, यू पे द CGHS रेट of bed charges, of operative charges, of medicine charges, and you can get admitted and treated and take it off. तुम्हारा भी अगर कोई नॉन डिपेंडेंट है, उनको भी आप ट्रीटमेंट, इफ यू आर satisfied with that particular hospital where you are posted, you can get them treated there. उसमें क्या होता है कि एम्बियंस मिलता है. रेलवे में when you know at place posted at a doctor, you will be friendly with some doctors. डॉक्टर आपको जानते हैं, तो there will be a cozy, friendly, approachable atmosphere, which in a corporate hospital will not be available. आपसे ज्यादा बात भी नहीं करते, जो कि रेलवे में ये फायदा है. तो अगर नॉन डिपेंडेंट भी है, उसको पेमेंट देके CGHS रेट ही हम चार्ज करते हैं, नॉट लाइक अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, एंड द हॉस्पिटल फैसिलिटीज आर गुड, यू कैन गेट देमसेल्फ ट्रीटेड आल्सो. सो GRP पर्सनल आपने सुना है, कैडर को स्टेट से भी हटा देगा, बट जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है उनको भी वही चूज करने पड़ेगा, मेडिकल फैसिलिटी स्टेट का लेना रेलवे, बट आज तक रेलवे वाला देखा नहीं कोई लेते हुए, स्टेट का ही लेते हैं, दो दे आर पोस्टेड इन स्टेशन. देन प्राइवेट सर्वेंट कुछ आता है, फ्री OPD ट्रीटमेंट. जो प्राइवेट सर्वेंट बोले तो आप लोग जब अभी यहाँ तो अभी ट्रेनिंग पे हो, इसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको इंस्टीट्यूट जाओगे, CTI जाओगे, उसके बाद आपका 52 वीक्स बाद पोस्टिंग आएगा. तो नेक्स्ट ईयर एंड में जब पोस्टिंग आएगा, पोस्टिंग के बाद यू विल बी असिस्टेंट ऑफिसर होके आप कहीं पे डिवीजन में पोस्ट हो, तो आपको एक टाइप 4 का मिनिमम क्वार्टर मिलेगा. उस क्वार्टर में आउट हाउस होता है, सर्वेंट क्वार्टर बोलते हैं. उस सर्वेंट क्वार्टर में किसी एक मेंबर को आपको सर्टिफाई करने पड़ेगा अगर उसका OPD ट्रीटमेंट मिलता है फॉर रूटीन इलनेस, नॉट फॉर क्रॉनिक इलनेस. रूटीन इलनेस, जुकाम, जुकाम, सर्दी, खांसी, डायरिया एक्सेट्रा, उसके लिए फ्री ट्रीटमेंट मिल जाएगा. आप सर्टिफाई करोगे तो डॉक्टर उसको ट्रीट कर देगा OPD में. लेकिन अगर वो भर्ती होता है, ऐसी कोई नौबत आई उस प्राइवेट सर्वेंट को जिसके साथ आपको कोई नाता नहीं है, ओनली ही और शी इज स्टेइंग विद द फैमिली इन योर आउट हाउस टू प्रोवाइड यू सर्विस, हेल्प करते हैं आपको, उनके एक व्यक्ति को अगर आप सर्टिफाई करते हो तो इंडोर भर्ती होगा तो 40% चार्जेस उसको देने पड़ेगा, 60% वेव ऑफ. सिमिलरली जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, उसका जो लेबर है वो अंडर लेबर लॉज, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी फ्री ट्रीटमेंट टू देम. सिमिलरली लाइसेंस पोर्टर्स है, कूली है, फ्री OPD ट्रीटमेंट टू सेल्फ एंड फैमिली मिलेगा, और फ्री इंडोर ट्रीटमेंट उसके लिए मिलेगा कब, जब वो इंजर्ड पैसेंजर के लगेज लेते समय अगर इंजर्ड होगा और स्टेशन मास्टर या ASM अगर उसको सर्टिफाई करेगा कि हाँ इसी चलते हुए इसका इंजरी हुआ, देन ही विल बी फ्री ऑफ ट्रीटमेंट उसका अंदर में. अदरवाइज OPD ट्रीटमेंट सेल्फ फैमिली के लिए परमिटेड है. नाउ लाइसेंस शू साइन वाज, जो शू पॉलिश करते हैं, उसके लिए पहले होता था मेडिकल ID कार्ड, फोटोग्राफ होता था, आजकल उसको सबको हटा दिया, एंड नोबडी इज देयर, यू विल फाइंड नोबडी इन रेलवे प्रीमाइसेस. Outsiders, like as I said, outsiders मतलब जो रेलवे बेनिफिशियरीज नहीं है, it might be your family members also, it might be your relatives also. No free treatment except family planning, operation, immunization. अगर रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस बी, उसका जो है वो आपको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के लिए भी. और अगर फैमिली प्लानिंग ऑपरेशंस कराते हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसी हिसाब से हो.
अदरवाइज उसका कंसल्टेशन चार्ज वो भूल जाओ, आपके लिए नहीं है। नाउ मेडिकल अटेंडेंस और फॉर सिक पैसेंजर्स ऑन ट्रेन। नाउ बात ऐसी है कि ये आजकल कंसल्टेशन फी उसको, सॉरी आई हैव नॉट रेक्टिफाइड दिस, इट इज 100 रुपीज, बट पैसा उससे हम नहीं लेते। वो जो टीटी है आजकल, टीटी सब मैनेज कर लेते हैं, वी ओनली अटेंड, और जिसको जरूरत है उसको करते हैं, वेरी सीरियस है उसको हम उतार देते। सो विजिट फैमिली मेंबर्स के लिए अगर है मेडिकल अटेंडेंस, अगर रेसिडेंस में आजकल जाते नहीं है, सब पास में ही हॉस्पिटल है वहीं आ जाते हैं। स्पेशल प्रोविजंस अगर है, मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं और आपका घर पे कोई फीमेल रिलेटिव डिपेंडेंट या बच्चे इमरजेंसी में कुछ हो गया, रेलवे हॉस्पिटल पास में नहीं है, तो यू कैन गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल एंड देन क्लेम रीइंबर्समेंट, बट इट हैज टू बी इमरजेंसी। तो वो रीइंबर्समेंट जब हम पढ़ाएंगे उसमें इमरजेंसी हम बता देंगे, व्हाट इज डिफाइंड बाय इमरजेंसी। डेंटल ट्रीटमेंट के लिए मैंने पहले बता दिया, फैसिलिटीज फुल टाइम पार्ट टाइम डेंटल सर्जन हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। वेयर नो फैसिलिटीज आर अवेलेबल, पीपल आर गेटिंग रेफर्ड, बट आउटसाइड डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नॉर्मली देते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजेंगे पूरा खर्चा रीइंबर्सेबल, प्राइवेट में भेजेंगे ओनली सीजीएचएस रेट पे आपको मिलेगा। The medical check pass issues to patient referred from one hospital to other। अगर मान लीजिए कोई हम दूसरा हॉस्पिटल में, मान लो बड़ौदा से बड़ा हॉस्पिटल कहाँ है, बॉम्बे, तो उसके लिए फ्री चेक पास मिलेगा विद एन अटेंडेंट। मेडिकल आई कार्ड तो है ही अवेल फैसिलिटी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और रेफर्ड केस के लिए रीइंबर्समेंट। अगर इमरजेंसी में मान लो आप बिना रेलवे को बोल के चले गए, विद इन 48 आवर्स हमने इंटीमेट कर दिया, एंड विद इन 6 months यू आर क्लेमिंग मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम विद इन 6 months, माइंड इट, विद इन 6 months सबको करेगा, उसके बाद नहीं करेगा तो then there will be lot of hassles you have to face to condone that period by the divisional accounts department and ADRM, additional divisional railway manager से करना पड़ेगा, अदरवाइज 6 months के अंदर पे करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर किया फुल, अगर नहीं किया इमरजेंसी में गया है नॉन रेलवे हॉस्पिटल, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट में, तो सीजीएचएस रेट में आपको इमरजेंसी अगर प्रूव्ड हुआ देन ओनली यू कैन क्लेम, एंड क्लेम विल बी ओनली सीजीएचएस रेट पे। मेडिकल रीइंबर्समेंट जब होगा ना, मैं आपको आई गिव यू गुड आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी कार्ड आजकल बन गया, विदाउट आइडेंटिटी कार्ड if it is not produced normally it is not given, but for officers some card some ID is there, but normally क्या करते हैं, इमरजेंसी हो फर्स्ट पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट करा देते, आइडेंटिफिकेशन पेपर्स बाद में हम कीप अबे रखते हैं अबेंस में, देन मेडिसिन रिपोर्ट जो भी ट्रीटमेंट करना करके वी कॉल अपॉन सम वेलफेयर पर्सन टू फाइंड आउट टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी। नॉर्मली सेम डिवीजन का हो तो कोई होता नहीं है प्रॉब्लम, हमारे लिए प्रॉब्लम होता है जब फॉरेन रेलवे बोले तो अदर देन माई हेडक्वार्टर रेलवे। अगर मैं वेस्टर्न रेलवे में काम कर रहा हूँ, मेरे लिए फॉरेन रेलवे एम्प्लॉय कौन है, सदर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे। यहाँ से तो मैं पूरा उसका नक्षत्र जानता नहीं है वो कहाँ से आया है, तो आई हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट, उससे डिपार्टमेंट से उसका चिट्ठी लाएंगे, तब तक हम ट्रीटमेंट करते रहेंगे। कुछ एक चीज हुआ था यहाँ पे, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ रेलवे पैसेंजर्स इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट्स एंड ट्रेसपासर्स। जो ट्रेसपासिंग करते हैं कब, जब लाइन क्रॉस करते हैं और ओवररन बाई पावर, मर गया, सीवियर इंजरी हुआ, अब वो अगर मेडिकल क्लेम करेगा कि रेलवे में आते जाते हुआ, ही इज अ ट्रेसपासर। इस लाइब्रेरी में एक पतली सी इंडियन रेलवे एक्ट 1989 का बुक है, उसमें क्लॉज नंबर 147 156 क्लियरली सेड प्रोवाइडिंग इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट खाली दे सकते हैं एंड सेंडिंग टू नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम कर सकते हैं। दिस डज नॉट बेस्टो एनी राइट ऑफ द इंजर्ड पर्सन टू कंप्लेन एनी कंपेंसेशन फ्रॉम रेलवेज इफ ही इज प्रूव्ड दैट ही इज अ ट्रेसपासर। और ट्रेसपासर नॉर्मली क्या करते हैं, ये मुंबई सबरबन में खूब देखा है आप लोगों ने, देख सकते हो, दोज हु आर स्टेइंग देयर आल्सो, लाइन क्रॉस करते हैं, फिर उधर जाके रैंप लेके रैंप से भागते हैं दूसरा प्लेटफॉर्म पे, ओवरब्रिज फुट ओवरब्रिज यूज ही नहीं करता, दीज आर ऑल ट्रेसपासर। इसके लिए अगर गहरा इंजरी हो गया तो ठीक है, उसका हम फर्स्ट एड दिलवा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर करवाएंगे, खुद अपना चले गया दूसरे जगह पे ठीक है, अगर बेचारा मर गया तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको भेज देंगे थ्रू जीआरपी, उसका मतलब लास्ट कार्यक्रम करने के लिए। रेलवे विल नेवर पे एनी, नॉट अ सिंगल पाई। और जब एक्सीडेंट होता है, मान लो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, डकैती हुआ, रेलवे एक्सीडेंट हो गया जहां पे पैसेंजर इंजरी है, डेथ हुआ, so in that case we will provide only, see in red I have written emergency and essential treatment, not anything। क्यों इस एक्ट से निकाल के ये लाइन हमने बाद में डाला था, बिकॉज आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर 2006 में इन 2006 नवंबर आई थिंक
2006 नवंबर, यस। बॉम्बे में एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जब शाम की गाड़ी में सब रेलवे पैसेंजर भी थे। वहां पे काफी लोग घायल हुआ था, काफी लोगों का मृत्यु हो गया था। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मीरा रोड तक, ठीक है। तो उसमें ऐसा हुआ था कि हेल्टर स्केल्टर, इधर से उधर सारे लोग, जिसको पता था उसको क्या किया था, वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, हिंदुजा में, लीलावती में, इधर उधर सब डाल दिया अपना रिलेटिव। रेलवे के ऊपर आ गया नेचुरली, क्योंकि एक्सीडेंट रेलवे में ही हुआ। तो रेलवे हैड टू पे ह्यूज कंपनसेशन। उस समय ये फ्रेम पॉलिसी एक्ट में से कोई देखा भी नहीं था। बाद में DGRHS, डायरेक्टर जनरल रेलवे हेल्थ सर्विसेज, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही वाज देयर, he read this act, find it out, and thereafter he said, आगे से अगर ऐसी की होगा, और आजकल यही होता है कि खाली इमरजेंसी ट्रीटमेंट और एसेंशियल। एसेंशियल मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कान का पर्दा फट गया, रिपेयर करना चाहिए ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो कर देंगे। पैर कट में क्रशिंग इंजरी हो गया बाथरूम में या कुछ हैवी मेटल से, उसका क्रशिंग इंजरी हो गया, उसका एम्पुटेशन, इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू सेव हिज लाइफ, इमरजेंसी इमीडिएटली देंगे। और एसेंशियल ट्रीटमेंट मतलब उसका एम्पुटेशन करने पड़ेगा। रेलवे हॉस्पिटल में हो या कहीं रेफर हॉस्पिटल में जहां पे दिया, उसके कॉस्ट बेयर रेलवे करेगा। लेकिन उसके बाद 3-4 महीना ठीक होने के बाद, अब उसमें क्या करना है, आगे जाके क्या करना है, वो रेलवे विल नॉट बेयर एनी मनी। उसके लिए बोलता है कि हम एक पैसा भी नहीं देंगे आपको। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, RCT, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में अगर आपको डिमांड करना है, आप लोग कोर्ट केस करिए, कुछ भी करिए, कोर्ट जो राय देगा, बाद में आर्बिट्रेशन होगा, देखा जाएगा। So this is how, as per medical attendance and treatment, we talk about, and now I am finishing it. देखो, एग्जाम होगा, सारी चीज हम नहीं पूछेंगे, सैलिएंट पूछेंगे, लेकिन आज का चैप्टर आपका रीडिंग मटेरियल से जस्ट यू गो थ्रू मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, बस, नथिंग विल बी इजियर देन दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।